in the clash. Should I say, I don't feel like saying clash, because it is, though there are many things which I wanted to say, but due to positive time, I think I will restrict to it for the time being. If any questions subsequently... Enemies who are responsible for transplantation of illegal immigrants on Indian soils over the decades. They were submissive to the rule of law when they were weak, but once when they gained strength, they started directly silencing India's integrity, territory, civilians, and the rules of law. That's what our speaker was trying to highlight. And we have one more speaker now, Mr. Amlan Datta, who is a researcher and expert on India's foreign policy, East Asian domestic politics and geopolitics. So may I invite you to the dais now. Thank you for your timely presence. Of operation, we have some few copies of a book entitled Gods of Peace. You may kindly get copies of it. If the number is not sufficient, we are ready to provide you PDF copies later on. We also have another booklet called Silent Invasions, which highlight the plight of the indigenous people who have been over-dominated, overpopulated, or overpowered by subsequent migrations of populations from the foreign countries, illegal immigrants. This book has been published by Mr. Rasai Kasar, who is also a speaker here. It is his organization who have published it. You may have copies of this booklet. Sorry for interrupting and diverting the issues by highlighting this book. It's very important, so I wish those media personnel who may have interest may kindly get a copy from us. Now, may I invite... What I want to pick out with that is that it's a conglomeration of tribes with no strong linkage between, and when they pass, they initiate conflict between other tribes to gain power. In my view, there are so many, or there are large percentage of Kuki who are peace-loving, who are not party to ethnic classes, or who are not party to war state. So I would also like to take this platform to address our brothers and sisters of Kuki origin, who are peace-loving, who are not party to, or who are not supporting this violent clash between two communities or two ethnic groups. Both Meiteis and Kukis, majority of Meiteis and Kukis have suffered a lot in last 16 months. We should come to an end. There should be some agreement. And as my previous speaker was saying, so far, the rest of the world, including our own Indian citizens, other than the Meiteis, the image being painted by our brothers and sisters of Kuki was that Kukis are volunteer group. They are not against nation, whereas Meiteis have been against nation. They have insurgent groups who are trained in China. That is image being painted, whereas the violence meted out on Meiteis during this last 16 months is horrendous, horrific, and unthinkable. Dimension which has come up after September is worrisome for everyone, not only for Meiteis, but for the nation itself. सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया बंधु का सबसे खास करके जो इशू आज है बहुत ही प्रेसिंग इशू है, बहुत ही अर्जेंट इशू है। लास्ट स्पीकर होने का केस कमेंटेज ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले केस के टच पे होते हैं। आई कमेंटेड ऑन द स्पीकर्स, दे रेज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। मेरा काम थोड़ा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन मणिपुर। इन द सेंस डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर ने एक पॉइंट रेज किया था
Who wins when Manipur burns? अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो हमारे ध्यान में 3 प्रमुख देश ऐसे हैं जो इस रीजन में, ना कि सिर्फ मणिपुर में बस, बट इस रीजन में प्लेयर बन के पॉलिटिक्स को, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला है यूएस, दूसरा है चाइना, तीसरा है रशिया। हमें पता है कि आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जूझ रहा है, तो रशिया का रोल इन्फ्लुएंस, that China has had an influence in the politics and fomenting factionalism in Northeast Asia. बचता है यूएस, they move hand in hand. The very fact कि इतने sophisticated weaponry यूज किया है, वो भी सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, अपने आप में प्रूफ है कि फॉरेन हैंड्स है डेफिनेटली। क्या हमारी सरकार खुल के बोल रही है कि वो फॉरेन हैंड्स कौन है? शायद नहीं। मुद्दा यह है कि जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, या तो हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, या हमारी फॉरेन सर्विस, या गवर्नमेंट एट द सेंटर, एट द लेवल ऑफ होम मिनिस्ट्री, हु आर द कल्प्रिट्स बिहाइंड, हैव वी आइडेंटिफाइड देम, एंड इफ वी हैव, हम क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलिटेंट्स के हाथ में आए? इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए ना। और एक इशू है, अगर हम ध्यान देंगे कि फॉरेन प्रेस मणिपुर इशू के बारे में क्या लिख रहा है या क्या लिखते आया है जब से ये इशू स्टार्ट हुआ, क्राइसिस स्टार्ट हुआ, फॉरेन प्रेस ज्यादातर ये लिख रहा है कि मणिपुर इज बर्निंग इन इंडिया, इट इज अ क्राइसिस बिटवीन 2 इंडिजिनस ट्राइबल एथनिक कम्युनिटीज। मतलब क्या हम ये समझे, फॉरेन कम्युनिटी या फॉरेन प्रेस का ये एजेंडा है कि मणिपुर इशू को सिर्फ एथनिक रिलीजियस क्राइसिस दिखा के उसको दबा दिया जाए, और अगर वो ये करने में सक्षम होते हैं, इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑप्शंस हैं टू यूज लेट्स से फोर्स टू सप्रेस द मिलिटेंट्स, वो लिमिट हो जाता है। इफ आवर गवर्नमेंट इज acquainted with that fact, and if our government, as we know of today, hasn't been very capable of handling the crisis, a lot of questions can be raised. Is the government on the right path? Well, that is for the open society to answer. That is maybe for the people of Manipur to answer. एक तो मणिपुर स्टेट का सरकार है, एक है सेंट्रल का सरकार है। सो पब्लिक का ओपिनियन ये है कि क्या हो रहा है पब्लिक को पता नहीं है, और लड़ाई हो रहा है। थोड़ा सा पीस का टाइम आया, 3-4 महीना थोड़ा शांति से बैठा, कार्रवाई चलने लगे, देन फिर क्या हुआ, ड्रोन का बम्बिंग आ गई, उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद फिर RPG वो दगा दिया। सो नाउ पूरा डिस्टर्ब है बेसिकली, और पता नहीं है कि नेक्स्ट में जो ड्रोन जो है कहाँ आएंगे, कौन से साइड में आएंगे। अभी पूरा वैली जो है वो कुकी ने पूरा 360 पूरा साइड से कवर करके रखा हुआ है, पूरा कवर है चारों तरफ से। और हम जो है वैली में रहते हैं, वैली का जो है उन्होंने क्या किया था, 2 प्रोपोगंडा शुरू की थी। पहले में मेजोरिटी हिंदू, उन्होंने माइनॉरिटी क्रिश्चियन को मार दिया, वो गलत है बिल्कुल, ठीक है, रिलीजन का कोई एंगल है ही नहीं इसमें। उसमें ये बोल दिया। सेकेंड वाला है मेजोरिटी मैतेई, उन्होंने माइनॉरिटी ट्राइबल को मार दिया। और ट्राइबल तो मेरा साथ आसाम का सब भाई भी बैठा हुआ है, कुकीज है, नगाज है, कुकी को नहीं ये एजुकेशन लगा कर रखा हुआ है, नगाजा उठोते हैं, उनका ज़्यादा स्ट्रेंथ है मणिपुर। ये है कि दोनों सरकार प्लीज़, हमको हमारा प्रजा लोग जो है बहुत तकलीफ में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं है, उसका क्लियर कीजिए। अंधेरा में रखिएगा, क्या करना है आप लोग, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, नहीं तो फिर अंधेरा में रखेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तो बहुत और लड़ाई होगा और एस्केलेट होगा और बहुत समस्या होगा, बहुत जाने जाएंगे। ठीक, सरकार जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, और हमारा जो प्रजा है यहाँ वैली का भी है और हिल्स में भी बहुत है, जो वो ये जो लड़ाई जो वो पसंद नहीं है, बहुत है। बट देन एक अलग से फोर्स है, वो करा रहे हैं इसको, तो वो लोग भी मुझे भी बहुत बातचीत करते हैं उधर का, क्योंकि लोग भी बहुत बातचीत करते हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं बेसिकली, बट फोर्स है, सम फोर्सेस चाहते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी है, तो उनके वजह से लड़ाई हो रहा है। तो अंधेरा में नहीं रखना है, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर टू सॉल्व इट। ठीक, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। फाइन।
हमारा डिमांड ये है कि जो 16 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे कितनी किलिंग्स हो रहा है उसको जल्द ही जल्द साथ पे ले आए। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हथियार लोगों के पास है, एक तरफ से सूख के नाम पर हथियार उनको दे रखा हुआ है, और जब 3 मई को ये क्लास शुरू हुआ था तो लाइफ्स को सेव करने के लिए कुछ लोगों ने हथियार फोर्सेस से भी लिया हुआ। सबसे पहले हथियार को डिसआर्म होना चाहिए, लोगों से डिसआर्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बफर जोन लगाया हुआ है, लेकिन वो एनफोर्स सही तरह से नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को हुआ है, 1 सितंबर को जो हुआ है, अगर आप देखोगे तो एक एम्बुलेंस पे जो निमखोंग से दिया था उसी पे ही कोटरुक पे आया था, और ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा था कि खुद ही मैतेई विलेज से मैतेई लोगों को मारपीट कर या लड़ाई कर। तो इसका मतलब जो बफर जोन है वो सही तरह से एनफोर्स नहीं कर पाते। फोर्सेस बहुत है, सेंट्रल फोर्सेस बहुत है, लेकिन दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर पुटिंग देयर ऑल एफर्ट्स। नहीं, मैं वो नहीं करना चाहूँगा कि वो नहीं करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है। एडमिनिस्ट्रेशन अभी वहाँ पे एम्बिग्विटी पर है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द सिटी। कभी कभी आप लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू द पॉलिटिकल डोमेन। सिर्फ ये है कि क्लियरिटी नहीं है। इट शोज विद सो मच सिक्योरिटी फोर्सेस, यस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी वन कैन आउटडू द अदर। इट्स बैटल ऑफ द माइंड। वेयर आगे रखना चाहता हूँ कि जो एरियल बॉम्बिंग ड्रोन के जरिए और मिसाइल्स के जरिए ये गंभीर सिचुएशन है, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, और ये जाहिर करता है, ये प्रूव करता है कि देयर इज सम फॉरेन हैंड बिहाइंड। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू Imphal Valley now. The situation has gone worse, and central force or the central government should enforce all its means and enable security forces to put the situation under control. काफ़ी प्रयास किए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट में शांति की लहर बनाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए। तो आज जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि कल जाके किसी भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में क्या, देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। अभी हमने तो हाल ही में देखा बांग्लादेश में क्या, हम बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, बिल्कुल उनको हम अलग से देख नहीं सकते। एक लार्जर एजेंडा है, हम मानते हैं कि इसमें फॉरेन हेल्प ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, और जब तक हम किसी देश के साथ टेक्निकली एट वार नहीं होते, हम उस देश का नाम नहीं ले सकते। लेकिन ये बात पूरे कम्युनिटी को सबको पता है कि कौन सा देश इसमें क्या रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हम सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारी सरकार से भी मांग रही है कि आप अब तक जो करते आए थे अच्छा, लेकिन ऐसे इशू को जहाँ पे सिविलियंस की दिन दहाड़े मौत हो, खास करके आज 15 महीने बाद जहाँ पे ड्रोन्स मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपको इस मुद्दे को और भी सीरियसली लेना होगा। आपको अपना प्रयास और भी प्रखर करना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े, आपको फोर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर अब तक सरकार ये समझ रही थी कि फोर्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी सोच एक तरफ से सही थी कि अपने सिविलियन पॉपुलेशन पर कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है तो सरकार को क्या ऐसी चीज़ें जो रोक रही है कि सरकार फोर्स, मेरा सरकार से नहीं समझ।